عدالت نے آپ کو جھوٹا قرار دیا، عدالت نے آپ کو بےغیرت بتایا، عدالت نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، شٹ اپ، کہ اپنے دل کی مسجد میں مندر بنا کر ایک ایسا بت نہ تراشیں کہ آپ کو حکم اذاں ہو اور آپ جنتر منتر پڑھنا شروع ہو جائیں۔ السلام علیکم، عرفان ملک، نشاندہی۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کئی دنوں سے اقرار الحسن ایک حق خطیب نامی جعلی پیر ہیں، اس کے خلاف مسلسل پروگرام کر رہے ہیں، انہیں کرنا بھی چاہیے، وہ پیر جعلی ہیں۔ اقرار الحسن ایک بات درست سمت میں کہہ رہے ہیں، بالکل یہ سنی جانی چاہیے۔ قرآن پاک مگر یہ کہتا ہے کہ وہ بات تم کیوں کہتے ہو جو تم خود کرتے نہیں ہو۔ اقرار الحسن ایک ایسا شخص جس نے ابھی کل ایک ویڈیو ڈالی، میں پہلے بھی اس کے پروگراموں کو اور اس کی چیزوں کو فالو کر رہا ہوتا ہوں، مگر کل کا ایک ویڈیو ڈالنے کا جو کیپشن تھا وہ بڑا مضحکہ خیز یا دلچسپ کہیے میرے لیے، وہ یہ تھا، جعلی پیر کی جعلی مریضہ۔ مجھے یاد آیا آج سے 4 برس پہلے جعلی اینکر کی جعلی سورس، جعلی اینکر کے جعلی ذرائع، جعلی اینکر کی جعلی خبریں اور جعلی پروگرام۔ یہ کہانی ہے 2019 کی اسلام آباد کے ایک ری ہیبلیٹیشن سینٹر کی، جس میں ایک خاتون نے اقرار الحسن کو ایک دوسری خاتون کی تصویر بھیجی اور یہ بتایا کہ اقرار، یہ خاتون اغوا ہو چکی ہیں، آئیے اور ہماری مدد کیجیے اس خاتون کو اس ری ہیبلیٹیشن سینٹر سے نکالنے میں۔ اقرار الحسن ہمیشہ کی طرح بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی تصدیق کے چڑھ دوڑتے ہیں اس ادارے کی جانب، پولیس کے ساتھ، انتظامیہ کے ساتھ، ڈی سی کے ساتھ، اپنی ٹیم کے ساتھ، کیمرہ مینز کے ساتھ، اور جب چڑھائی کرنے کے بعد وہاں پہنچتے ہیں، انتظامیہ پڑھی لکھی ہوتی ہے، وہ اسے پورا موقف سمجھاتی ہے، پورا مدعا سمجھاتی ہے۔ اقرار، بات یہ نہیں ہے جو تمہیں بتائی گئی ہے، دراصل بات یہ ہے۔ وہ بات کیا ہے وہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اقرار کی اس سورس کے بارے میں آگاہی دینا چاہوں گا جو جعلی اینکر کی جعلی سورس تھی۔ یہ وہ خاتون ہے اور اس خاتون کی ان تصاویر سے آپ اس کی عادتوں کا بھی پتہ لگا سکتے ہیں، لیکن ہم کسی کی پرسنل لائف کی طرف جانے سے پہلے اس کے اسی پروگرام سے متعلقہ چیزوں پر آنا پرائیورٹی دیں گے۔ اس ادارے کے مالک نے کچھ میسیجز ہمیں دکھائے، ان میسیجز میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس خاتون کا اصل مسئلہ کیا ہے۔ تو یہ جو جعلی اینکر کی جعلی سورس تھی، ان کا اصل مسئلہ یہ تھا کہ اسی ادارے میں ایک اور شخص تھا جو وکیل تھا، لائر تھا، مگر اب نفسیاتی مریض کے طور پر وہاں داخل ہو چکا ہے۔ یہ وہ خاتون ہے جو اس کو مریض بنانے کا موجب ہے، یہ وہ خاتون ہے جو اسے پاگل پن کی دہلیز پر پہنچانے کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے۔ اس شخص کو، یہ کوئی ہلکا شخص نہیں ہے، اس شخص کا باپ کسٹم جج ہے، اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے بھرتی کروایا، داخل کروایا، اور وجہ یہ تھی کہ یہ خاتون اسے اپنے عشق میں اس قدر پاگل کر چکی تھی کہ اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو، اپنی ذہنی حالت کو، اپنے کوٹ کو، اپنے کریئر کو، اپنی تعلیم کو برباد کیے جانے کے بعد اس نہج پر پہنچا کہ اسے اس ریہیبلیٹیشن میں اس کے سگے باپ نے داخل کروایا۔ یہ خاتون اب ان کے پاس چیک بک تھی اور یہ اس وکیل سے جو اس وقت ذہنی کیفیت اپنی کھو چکے تھے، مل کر چیک پر سائن کروانے کے لیے چکر لگا رہی تھی۔ انتظامیہ سے تعلق ہوا، انتظامیہ نے منع کر دیا کہ نہیں، آپ نہ تو اس کی بہن ہے، نہ آپ اس کی بیوی ہے، نہ ہی آپ کوئی فیملی فرد ہے، لہذا آپ کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بس پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ خاتون بدلہ لینے کی ٹھان لیتی ہیں اور اسی بدلے کی تمنا میں یہ وہاں کے جب بار بار چکر لگاتی ہیں تو مختلف لوگوں سے بھی دیکھتی ہیں، تعارف ہوتا ہے، کوئی خاتون، کوئی بچی، کوئی عورت، کوئی بوڑھی۔ اس درمیان اسے ایک خاتون سے واسطہ پڑتا ہے۔ یہ خاتون جس کی اقرار کو یہ تصویر بھیج کر مغوی بتاتی ہیں، یہ جب واش روم جاتی ہے یہ اس کے پیچھے جاتی ہیں، وہاں واش روم میں سے پکڑتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جی آپ اپنے بارے میں بتائیں، کون پیشنٹ۔ ناظرین کرام، یہاں تھوڑی دیر کے لیے اس معاملے کو روک کر آپ یہ سوچیں، آپ میں سے اگر کچھ لوگ کبھی کسی ریہیبلیٹیشن سینٹر یا کسی مینٹل ہاسپٹل گئے ہوں تو کبھی کسی پاگل کے منہ سے یہ اقرار سنتے ہوئے دیکھا، کرتے ہوئے اسے دیکھا کہ وہ اپنے آپ کو پاگل کہہ رہا ہو، کوئی نفسیاتی مریض یہ قبول کر رہا ہو کہ ہم نفسیاتی ہیں، بلکہ اس مرض میں مبتلا شخص کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہی یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نفسیاتی نہیں مانتا، جیسے کہ یہ صاحب نہیں مانتے جن کے پروگرام ان دنوں چرچا میں ہیں۔ بہرحال یہ مریضہ اپنے آپ کو کہنے لگی کہ مجھے یہاں پر رکھا گیا، یا انہوں نے کہا یا نہیں تھا، انہیں موقع مل گیا کہ یہ صحیح ٹارگٹ ہے جنہیں استعمال کر کے میں اس شخص سے بدلہ لے سکتی ہوں جو مجھے میرے عاشق سے ملنے نہیں دے رہا۔ اور اس کے لیے اس نے پلان بنایا اقرار کے ساتھ۔ اقرار بھی کس مزاج کے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، یہ ان سے ملی یا تصویر بھیجی، انہیں راضی کیا۔ کیسے راضی کیا یہ میرے علم میں نہیں ہے، اقرار صاحب راضی ہو گئے۔
राजी हो जाने के बाद ये पूरे तमतराक के साथ अपनी टीम के साथ जब इंतजामिया के साथ मुलाकात होती है, पहुंचते हैं, और वहां आप इनके सीसीटीवी फुटेजेस में भी दिखाया, ऐसे पहुंचते हैं जैसे ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बल्कि इकरारुल हसन के बाप की जागीर हो। ये वहां पर पहुंचते हैं, मालिक पढ़ा लिखा था, इंतजामिया समझदार थी, उन्होंने पूरा ये वाला मौकिफ जो भी मैंने आपके सामने रखा इकरारुल हसन को समझाया। जाहिर है इंतजामिया साथ थी, पुलिस वाले साथ थे। इकरारुल हसन ने वहां पर चुपके से ये वादा किया कि जनाब हमें बात समझ में आ चुकी है, हम ये प्रोग्राम नहीं चलाएंगे। अब वक्त गुजर जाता है, 4 महीने गुजर जाते हैं। 4 महीने बाद ARY पर एक इकरारुल हसन का प्रोग्राम सरेआम नशर होता है, और उस प्रोग्राम में इस इदारे को एक कहवा खाने के तौर पे बताया जाता है, एक खाने के तौर पे बताया जाता है, और यह बताया जाता है कि वहां मुल्क की बच्चियों को अगवा करके रखा जाता है और वहां उनकी इज्जतें नीलाम की जाती हैं, और वहां चौधरी तारिक बशीर चीमा जैसे लोग आते हैं, उनके बेटे जैसे लोग आते हैं, और वो वहां पर आकर उन बच्चियों की बोलियां लगाते हैं, और उसके बाद इनकी इज्जतें तार तार की जाती है। और वो मैं हूं मसीहा जो इनकी इज्जतें बचाने के लिए बाहर निकला, अपनी जान जोखों पर लगाकर, अपने आप को खतरे में डालकर, अपना वक्त देकर, अपना पैसा, अपनी कीमती तहकीक लगाकर मैं वहां पर पहुंचता हूं, और पहुंचने के बाद ऐसी बच्चियों को बाजियाब करवाता हूं। और आप हम सब सुनते हैं, इकरार भाई को हीरो के तौर पे देखते हैं, और एक बच्ची को बचाते हुए देखते हैं, वो बचाकर उस कैबा खाने से बाहर लाते हैं और अपने घर वालों के हवाले करते हैं, और जब हम ये सीन देखते हैं तो देखने के बाद हम तालियां बजाते हैं, इकरार भाई को सलाम करते हैं, और हमें लगता है कि वाह कितना बड़ा अजीम कर दिया काम, इकरार भाई कितने अजीम है। इकरारुल हसन ने तो एक ऐसा मार का सर किया जो हम जैसे सोच सकते हैं, तसव्वुर कर सकते हैं, हम कर नहीं सकते, लिहाजा हम शाबाशी देते हैं। लेकिन जब हम हकीकत देखते हैं तो हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स होती है। हकीकत क्या होती है कि ना तो वो बच्ची मुग़वी है, ना ये असल शिकायत कुनंदा है, ना इदारा ही कहबा खाना है। इदारा एक प्रॉपर रजिस्टर्ड इदारा है जिसके पास 62 से ज्यादा उस वक्त मरीज थे, और वो सारे के सारे मरीज हाई रेपुटेशन के बच्चे थे, कोई किसी जज का, कोई किसी फलां का, कोई, लेकिन जहनी इमराज ओहदे देखकर नहीं आया करती। नाज़रीन किराम, बड़े घरों में भी बड़े मरीज होते हैं, वो यहां पर दाखिल होते हैं और अपनी मर्जी से दाखिल होते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। अब क्या होता है कि प्रोग्राम नशर कर दिया जाता है, इंतजामिया मुतहर्रिक होती है इदारे की, वो पैमरा में जाती है, वो जिला इंतजामिया में जाती है, वो अदालत में जाती है। इस प्रेशर के बाइस इकरारुल हसन बजाय माफी मांगने के, बजाय अपने गुनाह को तस्लीम करने के, ये क्या करते हैं कि पिम्स हॉस्पिटल पर प्रेशर डालते हैं इस्लामाबाद के DC के जरिए, और ये बात तय होती है कि एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा। एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा, वो बोर्ड तय करेगा कि आया ये मरीजा है या नहीं। उस मेडिकल बोर्ड में साइकेट्रिस्ट प्रोफेसर, मेडिसिन के प्रोफेसर, न्यूरोलॉजी के प्रोफेसर बैठते हैं, वो एनालिसिस करते हैं और ये तय करते हैं कि ये वाकईतन मरीजा है, इसे दाखिल करवा कर इसका इलाज होना चाहिए, इलाज होना चाहिए। ये सच साबित होने के बावजूद इकरार साहब बजाय शर्मिंदा होने के एक और प्रोग्राम कर डालते हैं। इसके जवाब में जब मालिकान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये फिर शर्मिंदा होने की बजाय एक और प्रोग्राम कर डालते हैं, एक और प्रोग्राम कर डालते हैं, और यूं 10 अक्टूबर से 19 दिसंबर तक मुसलसल इकरारुल हसन एक इदारे के पीछे सर पैर और पूरे जिस्म समेत घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुंह की खा के वापस आते हैं। वो है ना, वो तो इज्जु मंतशा, वो तो जिल्लु मंतशा व लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। वो पहली आयत अलग है, ये अलग है, इसे जोड़ मत दीजिएगा। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे, और झूठों पर तो अल्लाह की लानत ही है। एक ऐसा झूठा शख्स जो अपने झूठ पर माफी मांगने की बजाय, या कम से कम दर्जा है शर्मसार होने का, उस पर शर्मिंदा होने की बजाय मजीद ये कि वो एक और मुसलसल प्रोग्राम करके अपने झूठ को मजबूत करने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम हो जाता है। पैमरा 5 लाख रुपए का जुर्माना करता है, और पैमरा की एक अलग दास्तां है। वो मालिक बताते हैं इदारे के कि हम पैमरा में 19 से 21 दिन तक ख्वार होते हैं, मगर इकरारुल हसन का दबाव और ARY का दबाव ऐसा होता है कि हमारे हक में जो फैसला है वो हमारे हवाले नहीं किया जाता। हम वहां पर पहुंचते हैं, हमें ज़दोकोब किया जाता है, हमें गार्ड्स के
थ्रू पिटवाया जाता है, लेकिन हमारा कैमरा छीन लिया जाता है। और किसी तरीके से जब कैमरा हाथ लगता है, मैं लाइव वीडियो बनाता हूं और मैं ये कहता हूं कि अब अगर तुमने हमारा कैमरा छीना, ये भी आप देख लीजिएगा, ये क्लिप भी मैं आपको सुनवाता हूं। जब मैं 5th फ्लोर पे पहुंचता हूं, वो पीएन भाग के आ रहा होता है, इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स लगे हुए हैं पेमरा के चेयरमैन के ऑफिस में। वो जैसे ही लॉक करने की कोशिश करते हैं, मैं उससे पहले पहुंच चुका होता हूं। सामने पीएस भी बैठा हुआ है, सामने चेयरमैन। आगे से उनका पहला जुमला क्या था, आपको कैसे पता चला कि हम दफ्तर में बैठे हैं? यार ये स्टेट है कि बनाना रिपब्लिक? हमारे टैक्सों पे बने बिल्डिंग्स में बैठ के हमारे टैक्सों से पलने वाले ये पब्लिक सर्वेंट्स हमारे आका बने हुए हैं, गुलामों की तरह ट्रीट किया जा रहा है हमें। मैं वहां जाता हूं तो मुझे कहते हैं कि जी गार्ड्स को बुलाओ और इसको बाहर फेंक दो, पेमरा का चेयरमैन कहता है। फिर पेमरा चेयरमैन जनाब वो गार्ड्स को बुलाते हैं, मैं वीडियो बनाना शुरू कर देता हूं। गार्ड्स आते हैं, वो मुझे घसीटते हुए बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं, मुझसे फोन छीन लेते हैं और मेरी गैलरी में जाके जिसमें मेरी फैमिली पिक्चर्स भी हैं उस वीडियो को डिलीट करते हैं। फिर रिसेंटली डिलीटेड आइटम्स में जाके वहां से भी डिलीट कर देते हैं। अब अगर आपने हमारा कैमरा छीना तो तुम्हारी वीडियो लाइव जा रही है, इसमें आप एक्सपोज हो जाओगे, तब जाकर कहीं वो ये छीना झपटी और मार पिटाई की जो सूरत हाल होती है, इससे वो चेयरमैन पेमरा जो है वो मना करता है। ये है उस इदारे के मालिक का कहना कि ये है माफिया। असल में ये जो मीडिया की सूरत में, सहाफी की सूरत में, इकरारुल हसन जैसे सहाफी की सूरत में, आप जिनको अपना मसीहा मानकर, जिनको अपना बड़ा मानकर अपना मसला सामने रखते हैं, ये उस मसले से खेलते हैं, उसका फायदा उठाते हैं और फायदा उठाकर सारा का सारा फायदा किसी में तकसीम नहीं करते। जिनका मकसद डॉलर कमाना हो, जिनका मकसद शोहरत कमाना हो, जिनका मकसद नाम बनाना हो, नाज़रीन किराम, उनसे इस्लाह की तवक्को रखना अब से बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी ख्वाजा से बच्चे की तवक्को रखना। ये एक केस है, 5 लाख का जुर्माना होता है। 5 लाख के जुर्माने के साथ एक शिक ये भी थी कि आप पूरी कौम से माफी मांगे, लेकिन वो चेयरमैन साहब जो है पेमरा के, वो अपनी दोस्ती निभाते हुए इकरार से ये शिक हटा देते हैं और 5 लाख का जुर्माना होता है, जो ये बात साबित करता है, ये बात डेवलप हो जाती है कि ये झूठे हैं, काजिब हैं, बेगैरत हैं, जो किसी की भी इज्जत और पगड़ियां उछालने में जरा तामुल नहीं करते, जरा देर नहीं करते, जरा भर वक्त नहीं लगाते, इन्हें किसी किस्म का कोई एहसास नहीं होता। दूसरा केस जिसमें आपने सुनी रखा होगा, ये साहब खुद गधे ज़िबा करवा के बेचते हुए को पकड़ते हैं और उसके बाद बताते हैं कि ये देखिए हमने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, ये गधे बेच के लोगों को खिला रहे थे। वो भी बात बकवास साबित हुई, देख लीजिएगा यूट्यूब पर। तीसरा हालिया केस, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का केस। हाल ही में तारिक बशीर चीमा और उनके बेटे को लेकर के इन्होंने अपनी तमाम तोपों का रुख इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी की तरफ किया और सारे गोले दागे इस तरफ। नाम था तारिक बशीर चीमा का, उनके बेटे का, गलत वो करते थे, बदबस्तियों में वो गर्क थे, लेकिन डबोया गया इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का नाम। हमारे एक दोस्त हैं प्रोफेसर, वो बताते हैं कि हम अपनी तलबा और तालिबात के साथ कश्मीर में ट्रिप पर गए हुए थे और वहां पर जाहिर है कि सिग्नल्स ना होने के बायस हमें नहीं मालूम था कि मुल्क की सूरत हाल क्या है, क्या चल रहा है, कौन सी फप्पे कुटनी है जो हमारे खिलाफ इस तरह की बातें कर रही है। हम बिल्कुल नावाकिफ थे और हम कश्मीर से निकले, इस्लामाबाद आए, वहां पर पूरा एक ग्रुप था। उस ग्रुप ने जब किसी होटल में खाना खाने के लिए बैठे और हमने अपना तारुफ करवाया तो लोग हमें यूं देख रहे थे गोया हम बगैर कपड़ों के बहराना वहां पर बैठे हुए हैं। हर आंख हमें घूर रही थी, हर चेहरा हमारी जानिब मुतवज्जा था, हर शख्स हमें सुनना और देखना चाह रहा था। बच्चियां शर्म के मारे पानी पानी हो रही थी, तलबा किसी से आंखें मिलाने के काबिल नहीं थे। जब उन्हें यह पता चला कि हम और हमारी यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक फप्पे कुटनी इस तरह की बातें कर रही कि गोया हम 24 घंटे बुराई की दलदल में अटे रहते हैं, फंसे रहते हैं, डूबे रहते हैं, हम यहां पर पढ़ने नहीं आते, गोया यहां पर हमारा काम ही सिर्फ जिनसी मामलात में गर्क रहना है। हम यहां पर जब आते हैं तो इतने बेबस हो जाते हैं, इतने मजबूर, इतने लाचार, इतने बेकस हो जाते हैं कि हम यहां पढ़ नहीं पाते, बल्कि हमारे साथ ये हमारे प्रोफेसर मौजूद है, ये हमें सिर्फ रंगरलियां मनाने के लिए हमें हमारे यूनिवर्सिटी में बुलाते हैं। कह रहे हैं हमारी ये फीलिंग्स थी, वो जो हमारी बेटियों जैसी, हमारी बच्चों बहनों जैसी तलबा और तालिबात हमारे साथ थे, हम उनसे और वो हमसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं थे। हमें ऐसी नहज पर, ऐसे स्टेज पर पहुंचा दिया गया था कि जहां पर हमें ये लगने लगा था कि हम वाकई ही मुजरिम हैं और ये जो बताने वाला है ये बिल्कुल सादिक है, अमीन है। दरहकीकत ऐसा नहीं था। प्रोफेसर बताते हैं कि बच्चियों में आंखों में आंसू थे, उनके घर वालों का फोन मुसलसल आया जा रहा था। उन्होंने ये कह रखा था कि आप तमाम अपना ट्रिप जो भी चीजें वो कैंसिल करें और फौरन घर पहुंचे। इकरार साहब आपको पता नहीं है कितनी बच्चियों के रिश्ते वहां पर मनसूख हुए हैं, कितनी बच्चियों ने अपनी जिंदगियों को खत्म करने की कोशिश की है,
कितनी बच्चियों के ख्वाब आपने रोंद डाले हैं, कितनी बच्चियों के चेहरे आपने मस्क कर डाले हैं। वो पसमानदा सराइकी इलाका जहां पर वैसे ही पढ़ाई का फुकदान है, जहां पर वैसे ही पढ़े लिखे लोग कम हैं, वहां की बच्चियां आज आपके इस प्रोग्राम के बाद मजीद तालीम के इदारों से उठा ली गई हैं। घर वाले उन्हें नहीं भेज रहे, इसलिए कि उन्हें ये यकीन दिला दिया आपके इस झूठ ने, आपके इस सेंसेशनल म्यूजिक ने, आपकी इस एडिटिंग ने, आपके इस वॉइस ओवर ने, आपके इस प्रोग्राम ने, आपके इस नाम की तलब ने और आपके इस झूठे प्रोग्राम ने, लोग ये आप पर यकीन कर बैठे हैं कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। और उन्होंने अपनी बच्चियों को पढ़ाने का ये जो सिलसिला मौकूफ किया है, ये सिर्फ उनकी बच्चियों तक मौकूफ नहीं है, बल्कि ये उनकी आने वाली नस्लों तक जारी रहेगा। जब मां जाहिल होगी तो वो बच्चा कैसे पढ़ा लिखा बनाएगी? आप ही कहते हैं अपने प्रोग्रामों में। और आपके इस एक झूठ की वजह से कितनी हजारों बच्चियां हैं जो, और उनकी आइंदा आने वाली नस्लें जाहिल रहेंगी। ये जो आपने गुनाहे जारिया का काम किया है, ये मरने तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आपकी तोपों का रुख था तारिक बशीर चीमा तक, उनके बेटे तक, वहां के एसपी डीएसपी तक, तो वहीं तक महदूद रखते तो हम आपको अप्रिशिएट करते, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। लेकिन इस मर्तबा आपने एक गरीब, एक पसमानदा इलाके की बच्चियों को बरहना बताने की कोशिश की। वो प्रोफेसर जिन्होंने पूरी जिंदगी तालीम के सिवा कुछ नहीं किया, उन्हें आपने प्रोस्टिट्यूट बताने की और साबित करने की कोशिश की। और उसके बाद आता है अदालत का फैसला, और उस फैसले में आपको बहना बताया जाता है, उस फैसले में आपको नंगा किया जाता है, उस फैसले में आपके कपड़े उछाले जाते हैं। और आप बजाय उस दोबारा कपड़े को पहनने के, बजाय अपना जिस्म ढकने के, बजाय सच के चोले से अपना नंगपन खत्म करने के, दोबारा प्रोग्राम करते हैं। और दोबारा आप ये कहते हैं कि अदलिया पर जोर डाला गया है, थानों पर जोर डाला गया है। तारिक बशीर चीमा और इसका माफिया इतना बड़ा माफिया है कि वो आपके खिलाफ होकर अदालत को भी खरीदते हैं, इदारों को भी खरीदते हैं, और तमाम चीजों को खरीद कर मैं आप मासूम में। बच्चियां गलत, वालिदैन गलत, प्रोफेसर गलत, टीचर गलत, इदारा गलत, थाना गलत, एसएचओ गलत, तारिक बशीर चीमा गलत, उनका बेटा गलत होगा। महज आप ठीक थे, अदालत ने आपको झूठा करार दिया, अदालत ने आपको बेगैरत बताया, अदालत ने कहा कि तुम झूठ बोलते हो, शट अप। और आपने उस पर भी माफी मांगने की बजाय मजीद प्रोग्राम किए, मजीद क्लिप चलाए। ऐसे कितने प्रोग्राम्स हैं आपके जिसमें आपको झूठा साबित किया गया है, जिसमें आपको झूठा करार दिया गया है, लेकिन आप बाज आने वालों में से नहीं हैं, झूठ बोलने से बाज आने वालों में से नहीं है। मेरे वो दोस्त जो इकरार के चाहने वाले हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूं। मैं जानता हूं मेरी ये बातें सुनने के बाद आप मुझे गालियां देंगे, तोहमतें लगाएंगे, कमेंट्स करेंगे कि जी इकरार भाई के खिलाफ जो एक पाकिस्तान का नामवर चेहरा है, जो पाकिस्तान में खामियों और बुराइयों और कोताहियों को दूर करने की कोशिश में अपनी जान खतरे में डालकर सुबह शाम लगा रहता है, उसके खिलाफ एक न जाने कौन शख्स है ये बकवास कर रहा है। आपका सोचना, आपके जज्बात ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा कि अपने दिल की मस्जिद में मंदिर बनाकर एक ऐसा बुत न तराशें कि आपको हुक्म अज़ां हो और आप जंतर मंतर पढ़ना शुरू हो जाएं। बुत गिराएं, चाहें, मोहब्बत करें, लेकिन उस मोहब्बत में जब कभी किसी को गलत पाएं तो उसे गलत बताना भी एक मुहिब का काम है। मैं ये समझता हूं कि मेरी मोहब्बत इकरार से आप सबसे ज्यादा है कि मैं यहां पर इस कोशिश में हूं, इकरार भाई झूठ छोड़कर सच का रास्ता अपनाएं। ऐसी हरकतें ना करें कि आपके पास यहां तो बहुत सारे जवाब हों मगर वहां पर लाजवाब हों। मेरा काम है हुक्म अज़ां, मैं अज़ां दूंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खुदा हाफिज।